I was talking about the Laplace transform and its application. Okay, Laplace transform and its applications. Laplace transform and its application means, what do you mean by Laplace transform? Laplace transform किसे कहते हैं? And what are the applications of Laplace transform? Laplace transform के applications क्या हैं? Fine? तो इसके पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि Laplace transform किसे कहते हैं? Like you have studies differential operator, integral operator, like that we have a Laplace transform. But the question is, what is the application or what are the uses of Laplace transform? Basically, the Laplace transform is being used to find out the solution of differential equation. Suppose that you have a ordinary differential equation where you write when you write the solution of that differential equation, you need to add arbitrary constant and particular integral. But when you will use the Laplace transform technique, there is no need to do all these things. Initial condition will be given, boundary condition will be given, and you can do it directly. As all of you know, suppose that we have a function f of t. Okay, एक function हमने ले लिया f of t. Now we have to find out the Laplace transform of this function. Already you know that this is a Laplace transform of this function can be obtained by applying the limit 0 to infinity. Lower limit is 0, upper limit is infinity. Now what we will do? We will multiply this function f of st and this is a f of t. This is the way how we can find the Laplace transform of any function. किसी फंक्शन का Laplace transform कैसे निकाला जा सके, ये इसका तरीका है. बट कीपिंग द माइंड यू मस्ट हैव t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. t की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. देन यू कैन फाइंड आउट द Laplace transform ऑफ एनी फंक्शन. फॉर कन्वीनियंट वी राइट इसका सपोज दैट the integral of this Laplace transform exists and say this is f of s. Instead of writing this whole thing, we write only f of s. So it is better way to write Laplace transform of f of t is equal to this is a f of s. And what is this f of s? You know, this is a nothing but this is a basic definition, e की power minus st, and this is a f of t, this is a dt. This is a definition of a Laplace transform. Means if you have given any function f of t, then what is the method, what is the process, how will we find the Laplace transform of that function? Okay, simple, multiply that function by exponential function e की power minus st and integrate it with respect to t and imposing the limit 0 to infinity. Lower limit will be 0 and upper limit will be infinity. This is the way how we can find the Laplace transform of any function. We have taken the function f of t and the Laplace transform of f of t is equal to this much. Now we will see how we can apply it to find out the Laplace transform of a different function. Like suppose that we have a 1, we need to find out the Laplace transform of 1. मान लो हमारे पास 1 है और इसका we have to find out the Laplace transform. The apply the basic definition of Laplace transform. How we can write it? We can write it 0 to infinity e की power minus st into 1 into dt.
बात समझ में आ गई? इट इज वेरी सिंपल। अब देखो यहां से क्या होगा, ये दिस इज 0 टू इंफिनिटी और e की पावर क्या हो जाएगा, st एंड dt ना। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द सिंपल इंटीग्रेशन रूल, सिंपल वट एवर यू हैव स्टडीज 10+2 स्टैंडर्ड। सो दिस इज ए e की पावर क्या हो गया, st माइनस दिस इज s लिमिट 0 टू इंफिनिटी। सिंपल, जो इंटीग्रेशन का फंडामेंटल रूल्स है, अप्लाई दैट रूल्स, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एन लिमिट 0 टू इंफिनिटी। नाउ अब क्या होगा, ये देखो दिस इज ए e की पावर माइनस s इंटू इंफिनिटी माइनस s माइनस e की पावर माइनस s इंटू 0 अपॉन माइनस इंफिनिटी। अब यहां से देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे, यू नो माइनस एस इंटू इंफिनिटी, किसी भी क्वांटिटी में अगर इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सबको पता है कि वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। लेकिन वो नंबर इटसेल्फ 0 नहीं होना चाहिए। लाइक दिस, अगर आप 1 इंटू इंफिनिटी करते हैं तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इंफिनिटी। If you are doing this 2 into infinity, yes, infinity. It means what? When you will multiply infinity by any number, or any number will be multiplied by infinity, you will get the result infinity. But except, see, 0 into infinity is not infinity. This is a question mark. I am talking about the multiplication now. I am not talking about the Laplace transform. Simple मैं multiplication की बात कर रहा हूं। 0 to infinity is not infinity, not 0. This is called indeterminate form. क्या कहलाता है, indeterminate form कहलाता है। ओके, तो जब आप यहां करोगे माइनस s इंटू इंफिनिटी, यहां पे आपको यू नीड टू टेक द प्रिकॉशंस। माइनस s इंटू इंफिनिटी इज नॉट इंफिनिटी, इट विल बी इंफिनिटी प्रोवाइडेड व्हेन s इज ग्रेटर देन 0। अगर s 0 से बड़ा है तो इंफिनिटी होगा, अदरवाइज इंफिनिटी नहीं होगा। ड्यू टू दिस बी राइट यहां पे, इसलिए हम क्या लिखते हैं, s is greater than 0. If s is greater than 0, then s into infinity is equal to minus infinity. Otherwise it is not possible. Otherwise ये संभव नहीं है। तो हम कैसे करते हैं, देखो, we write like this. Next page. तो क्या होगा, this is a s इंटू, अरे बहुत ही गड़बड़ है, इंफिनिटी इज इक्वल टू दिस नेगेटिव साइन इज इक्वल टू दिस इज ए माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। फाइन, बट प्रोवाइडेड द कंडीशन इफ दिस s is greater than 0, otherwise not, otherwise this is not possible. So whenever you write like this, the Laplace transform of 1 e की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 0 अपॉन माइनस 1 माइनस s, राइट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e की पावर माइनस इंफिनिटी। ओके, हाँ, e की, लुक एट दिस प्लीज, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू e की 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी। और किसी भी कोई भी डिजिट हो या क्वांटिटी हो और उसकी पावर इंफिनिटी लगा दोगे तो क्या आता है, इंफिनिटी आता है। बट अगेन प्रोवाइडेड द डिजिट नंबर शुड नॉट बी 1 और 0, 0 1 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1 की पावर इंफिनिटी इज अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म, यू कैन नॉट फाइंड आउट। ओके, सो दिस इज ए 1 अपॉन this is a infinity and 1 upon infinity is equal to this is a 0. तो e की पावर infinity is equal to how much? Look at this, e की पावर infinity is equal to how much? This is a 0. Fine. So put this value, this is a 0,
this is a 0 upon this is a -1, -1 upon this is a -1. And you know, any number, whenever you will divide 0 by any number, that will come out be 0. लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए. अगेन, अगर 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर ये 0 हो गया तो अगेन इट विल बी इनडिटरमिनेट फॉर्म. लुक एट दिस. You know 2 upon 2 is equal to 1. Okay? But 0 upon 0 is not equal to 1. Take care. 0 upon 0 is not equal to 1. This situation is also called indeterminate form. क्या कहलाता है? Indeterminate form. Fine. So, and you have taken S is greater than 0. S क्या है? 0 से बड़ा है. Due to this, divide 0 by some quantity which is greater than 0. This is a 0 and this is a plus 1 upon this is a S. Okay? तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया बच्चों? 1 upon S. Okay? तो what is the Laplace transform of 1? Laplace transform of 1 is equal to this is a 1 upon S, comma S is greater than 0. You must understand this portion. S is greater than 0. Always S is a parameter. Always you have to write, if S is greater than 0, then the Laplace transform of 1 is equal to 1 upon S. Otherwise, it is not possible. Fine? Then what is the Laplace transform of 1? 1 upon S. ओके? और हमने आपको पहले बताया था कि जिस फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है तो उसी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ओके? ऐसा नहीं किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. लाइक दिस यू कैन राइट, this is L inverse 1 upon S is equal to how much? 1. So this is inverse Laplace transform of what? 1 upon S. Inverse Laplace transform of 1 upon S is equal to this is 1, and Laplace transform of 1 is equal to 1 upon S provided S is greater than 0. And what is the S? S is a parameter. S क्या है? Parameter है. Fine. Now the next point. और ये बाद में सब क्या हो जाता है? फार्मूला हो जाता है. बेट now you have seen how we can find out the Laplace transform of 1. The second one, suppose we have to find out Laplace transform of t की power n. This is a t की power n. Now simple, apply the basic definition, apply the definition of Laplace transform of a function f of t. You will apply like this. This will be 0 to infinity e की power minus st into t की power n. This is a dt. अब इसको सॉल्व करने के पास आपके पास मेथड है, दो मेथड है. एक तो कन्वेंशनल मेथड है, जैसे आप इंटीग्रेशन निकालते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट. यू टेक फर्स्ट पार्ट दिस, सेकेंड पार्ट इफ, एंड स्टार्ट डूइंग दैट इंटीग्रेशन. तो यू विल फाइंड दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द इंटीग्रेशन. बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि जिसका रिड्यूस हो बाद में, ये बढ़ता चला जाएगा. ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वे वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए गामा फंक्शन. क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट गामा फंक्शन. व्हाट इज द गामा फंक्शन? ऑल ऑफ यू नो. गामा एन इज इक्वल टू हाउ मच? गामा एन इज इक्वल टू दिस इज ए 0 टू इंफिनिटी ई की पावर minus x, x की power minus 1 dx. This is a gamma function. Why we use the gamma function? All of you know? गामा फंक्शन क्यों यूज करते हैं? गामा फंक्शन इसलिए यूज किया जाता है जो बहुत सारे डिफिकल्ट इंटीग्रेशन होते हैं. तो हमारे जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड का मतलब क्या हुआ? जैसे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हाटएवर इट इज,
उससे नहीं आता तो हम क्या यूज करते हैं, गामा फंक्शन यूज करते हैं. नाउ यू रिप्लेस n by n plus 1, तो यू विल गेट दिस इज ए 0 to दिस इज ए infinity e की पावर माइनस x की पावर n dx. By looking this formula we will solve this portion. ठीक, तो e की पावर माइनस एस टी इक्वल दिस. अभी हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस एस टी है दिस. वी विल मेक इट x. We have to apply the gamma function. So what we are doing, we are taking st is equal to x, not this one, not this one. This st is equal to what we are taking, this is a x. I'm putting st is equal to this is s. So क्या हो गया इसके इंटीग्रेशन, s dt is equal to क्या आ जाएगा, dx. So dt is equal to हो जाएगा 1 upon x dx. फाइन, dt is equal to क्या हो गया, 1 upon s dx हो गया. ओके, नाउ इसका वो चेंज करो, आप लिमिट चेंज करो ना. अब क्या हो गया तुम्हारे पास, तो क्या लिखेंगे, when t is equal to 0 then x is equal to 0. इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की ना. देखो, when s is equal to, when t is equal to 0 x is equal to 0, यहां पुट करके यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे दिस वन. ओके, अब दूसरा when क्या लेंगे, t is equal to infinity then x is equal to how much, this is infinity. फाइन, अब हम इसको सबको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो, तो हमारे पास हो गया 0 to infinity e की पावर माइनस, in place of st we have taken x, this is a x and this is a, what is the t, यहां से देखो, what is the t, t is equal to how much, x upon s. तो in place of t we will write x upon s and power n, this is a dx. फाइन, देखो अब सॉरी, in place this is a, in place of dt we write this one, तो in place of dt this is 1 upon s ds, 1 upon s ds. ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, this is 0 to infinity and this is e की पावर माइनस x. फाइन, x की पावर s, x upon s की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n into 1 upon n plus 1, this is a dx, this is a dx. फाइन, अब ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, this is a constant 1 की पावर s n plus 1 and this is a 0 to infinity e की पावर माइनस x और x की पावर n, this is a dx. हो जाएगा, this portion, this one, this one. Okay, so this is a how much, this is a 1 and this is a 0 to infinity e की पावर माइनस x, x की पावर n, this is a dx. Look the definition of gamma function. Gamma n is equal to this much. Replacing n by n plus 1, तो gamma n plus 1 is equal to how much? This portion. This portion. Fine. Replace this by gamma n plus 1. तो हो गया तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा? This is gamma n plus 1 upon s की पावर n plus 1. s की पावर n plus 1. And look at this. This implies that the Laplace transform of this is equal to gamma n plus 1 upon s की पावर n plus 1. s की पावर n plus 1. So the Laplace transform of this is a t की पावर n is equal to this is a gamma n plus 1 upon s की पावर n plus 1.
And you know there is a relation between gamma function and factorial function. Gamma n plus 1 is equal to how much? Factorial n. Yes. So this can be written as like this, factorial n upon s की power, this is a n plus 1. This is a Laplace transform of a t की power n. For example देखो आप लोग, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कि फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 4. तो यू हैव टू ऑप्शंस. One, you find out by apply the basic definition of Laplace transform. What is that? ये है तुम्हारे पास 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी की पावर 4, दिस इज ए dt. ये है. अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत समय लेगा. तो वी विल नॉट फॉलो दिस पाथ. ये ऐसा ना करें. लगाने में सही है लेकिन इसको हम फॉलो नहीं करेंगे. तो क्या करेंगे? वी विल अप्लाई दिस फार्मूला by simply putting n is equal to 4. So this is Laplace transform of t की power 4 is equal to, this is 4 factorial upon s की power 4 plus 1. And what is the 4 factorial? This is a 4 into 3 into 2 into 1 upon s की power 5. ठीक. तो दिस इज व्हाट, कितना हो गया? 24. सो तो 24 अपॉन s की पावर, दिस इज ए 5. s की पावर 5. 24 अपॉन दिस इज s की पावर 5. यू राइट लाइक दिस अपॉन s की पावर 5. s की पावर 5. ठीक है. दिस इज हाउ यू विल यूज दिस फार्मूला. The Laplace transform of t की power 4 is equal to, this is a s की 24 upon s की power 5. Suppose you will do like this. अगर इसमें करेंगे आप तो क्या होगा? बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी सॉल्व करने में. इसलिए ये सब आपको क्या करना है? You have to use formula, this formula. Okay? Now the next one, Laplace transform of e की पावर 80. और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. यू विल एंजॉय टू फाइंड आउट दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो यू राइट लाइक दिस, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एंड e की पावर, दिस इज 80, दिस इज dt. ठीक है. अब देखो इसमें भी अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव आइडिया, यू डोंट हैव प्रैक्टिस, तो आप कर नहीं पाएंगे. कैसे? देखो इसके दो रास्ते हैं. यहां से दोनों रास्ते बढ़िया हैं, कोई खराब रास्ता नहीं है. एक रास्ता से यू विल गेट द रिजल्ट, दूसरे रास्ते से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो एक रास्ता ये है कि आपने क्या किया, इसको 0 टू इंफिनिटी किया, e की पावर माइनस, देखो बेस 1 है, s माइनस a, दिस इज ए t dt. दिस. दूसरा तरीका क्या है? आप यहां से क्या करते हैं? दिस इज ए 0 टू इंफिनिटी e की पावर a माइनस एस टी. दोनों सही है. यहां तक दोनों सही है. चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, देयर इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं. अरे भाई यहां पे आपके पास क्या है? e की पावर माइनस एस टी, e की पावर a टी. ऐड करो, पहले माइनस कॉमन ले लो, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट. आफ्टर दैट यू विल गेट दिस रिजल्ट. अब देखो इसको करें, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है. बता चुका हूं आपको कि e की पावर क्या हो जाएगा? s माइनस ए अपॉन माइनस एस माइनस ए, लिमिट 0 टू इंफिनिटी. अब देखो फिर वही प्रिकॉशन, सावधानी. अब यहां पे तुम्हारे पास क्या हो गया? e की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू ये दिस इज ए टी इंटू दिस इज ए टी अपॉन माइनस एस की पावर माइनस ए माइनस दिस इज ए
e की पावर माइनस s माइनस a इंटू 0 s माइनस दिस इज s माइनस a, ये है ना। अब देखो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो गया, ये देखो फिर अगेन प्रोवाइडेड द कंडीशन, ये क्या होना चाहिए, s माइनस a 0 से बड़ा होना चाहिए। s माइनस ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर s माइनस ए 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यू कैन नॉट फाइंड आउट। ओके, सो इसीलिए बी राइट लाइक दिस, s माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर सही से मैथमेटिक्स प्रोनाउंसिएट करना चाहते हैं तो ये कहा जाता है s माइनस ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां से तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस, ये आ जाएगा फिर वही हो गया e की पावर माइनस इंफिनिटी अपान ये हो जाएगा s माइनस ए e की पावर माइनस 0 अपान दिस इज s माइनस ए विद नेगेटिव साइन। एंड यू नो, आपने देखा अभी, यू हैव सीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e की पावर माइनस इंफिनिटी। अरे e की पावर माइनस इंफिनिटी इज व्हाट, 0। e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। कई बार बता चुका e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है अभी थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट पहले मैंने बताया, पहले वाले क्वेश्चन में जब आप लगा रहे थे कि फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए 1, तो तुम्हारे पास 0 हुआ, दिस इज अगेन 0, 0 upon minus s minus a, minus minus plus, this is 1 upon this is s minus a, and this portion is a 0, 0 divided by any number is a come out be 0, तो ये हो गया 0 हो गया, तो this is 1 upon s minus a, तो हो गया तुम्हारे पास क्या, s minus a, this is a Laplace transform of e की power 80 and provided the condition this s minus a is greater than 0, s minus a 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां देखो एक काम और, s minus is greater than 0 या हम कहेंगे s is greater than a, both are the same thing। देखिए हम ये कहें, अगर कहीं पे कहें इस तरह से कहें कि भाई s माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 है, या दिस इंप्लाइज दैट s इज ग्रेटर देन a, बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग। यू विल से s माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, इधर यू विल से s इज ग्रेटर देन a, दोनों क्या है, सेम चीज है, दोनों एक चीज है, ठीक है, चाहे s माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 कहें, चाहे s इज ग्रेटर देन 0। अब तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। नाउ द सेकंड पार्ट, फाइंड आउट दिस, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट e की पावर माइनस as, दिस इज t अपॉन a माइनस s, ओके, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब देखो यहां से पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी यहां पे a माइनस एस इंटू इंफिनिटी, एंड यू नो दैट a माइनस एस इज ग्रेटर देन 0। इफ a माइनस एस ग्रेटर देन 0 or if it is a 0, in that case it will be indeterminate form। if a minus s greater than 0 it will be infinity। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, infinity upon this is a minus s and this is minus this is e की पावर this is 0 upon this is a minus s। यहां समझ लो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। अगर हमारे पास a minus s, यहां पे देखिए, अगर a minus s is equal to 0, when you put t is equal to infinity, तो 0 into infinity, 0 into infinity क्या आ जाएगा, indeterminate form, वन केस indeterminate form। अब इसके बाद मान लो कि a माइनस एस 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो when you will multiply 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगा।
फिर इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी उसको सब्ट्रैक्ट करोगे फिर भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए वी विल नॉट फॉलो दिस पाथ। ड्यू टू दिस रीजन वी विल नॉट फॉलो दिस पाथ। ओके, विल फॉलो द ओनली दिस पाथ। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस किए होंगे, जब आप लगाएंगे तब आपको पता चलेगा which path you have to follow, which path you do not have to follow. So the Laplace transform of e की power at, look at this, Laplace transform of e की power at is equal to how much, 1 upon s minus a, and inverse transform of 1 upon s minus a is equal to what, e की power at. In the same way we can find out the Laplace transform of e की power minus at. Okay, so the Laplace transform of this e की power at is equal to, this is a 1 upon s minus a, provided comma if s minus a is greater than 0, or you can write like this, or s is greater than 0. So Laplace transform of e की power at is equal to 1 upon s minus a if s minus a is greater than 0 or s is greater than 0. Why it should be s minus is greater than 0 क्यों होना चाहिए, आपने देख लिया जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसी तरह सिमिलरली we can find out Laplace transform of minus at. So this is the value of this is a s plus a, and the same way if this is s plus a is greater than 0. ओके, इसी तरह हमारे पास और बेसिक्स हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना आ रहा है। साइन हाइपरबोलिक एटी, कास हाइपरबोलिक एटी, साइन एटी और कास एटी, ये बेसिक्स हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपने इसका सीख लिया, इतना करना सीख लिया तो बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगा हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारी थ्योरम्स दी गई हैं कैसे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। बहुत सारे में आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज यूज करके निकालना है, बहुत सारे में आपको डेरिवेटिव करके यूज करके निकालना है। देयर आर सो मेनी थ्योरम टू फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, बाद में लास्ट में जाकर क्या करते हैं, यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं और अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है सेकेंड ऑर्डर की, तो हम क्या करते हैं, विदाउट यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, विदाउट यूजिंग फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल, विदाउट यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट डायरेक्टली वी कैन अप्लाई द लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक एंड वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस। हेलो फ्रेंड्स, I am Professor R.K. Shukla. I am man of mathematics and I have more than 28 years of teaching experience. I teach mathematics. My area of specialization is differential equations, ordinary differential equation, partial differential equation, and theory of semi-groups, time discretization method, and I have also area of research is fractional calculus। और हमें ये पता है कि कैसे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ानी चाहिए, कैसे उनको क्लैरिटी नहीं रहती है, किस कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहिए। एंड आई हैव ऑथर्ड ऑफ 11 बुक्स, हमने 11 बुक्स लिखी हैं। तो लिखते समय जब मैंने बुक लिखना शुरू किया तो इस बात का हमने ध्यान रखा कि बच्चों को कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज होती हैं बुक्स में, क्या करें कि उनको समझ में आ जाए, इजिली समझ में आए, क्योंकि मैथमेटिक्स सुनते ही वैसे भी बच्चा परेशान होता है। ड्यू टू दिस, इन सब का ध्यान में रखते हुए हमने आई हैव पब्लिश्ड मोर देन 50 रिसर्च पेपर, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स।
अगर मेरे बारे में देखना चाहें तो सिंपली गो टू द गूगल स्कॉलर, राइट माई नेम Rajesh Kumar Shukla, you will find the number of research paper which I have published, and I have guided nearly 8 student, PhD student I have guided. Still there are 6 student who are pursuing PhD under my guidance. अगर आपको किसी को मेरी कोई जरूरत पड़े तो you can phone me, you can mail me, I will try to solve your problem. Thank you so much.